Viewers, this is your Rajeshwar. Today we shall discuss about animal cell culture. So last class I thought that the animal cell culture such as some types of the animal cell culture. So my dear students, so we are learning today animal cell culture. So first one, you know that the last class I thought that the primary animal cell culture. Today we shall discuss about secondary cell culture, cell line. So, on this basis of this lifespan of the culture, the cell lines are categorized into two types. So, first one, finite cell lines, and the second one, continuous cell lines. So, my dear students, here the secondary cell culture. So, we are learning about to them on this basis of the lifespan. So, here the cell is containing to the such a kinds of the lifespan. So, for example, our human being is having the lifespan 68 years, and some of the plants is having some different kinds of the life plants. That's why we can call to them perennial, so binomial, so like that we are called to them. So as well as here the cell is also containing to the lifespan. So different kinds of the lifespan based on the cell is categorized into the two types. First one, finesse. So first one we are learning about to the finite cell lines, and second one, continuous cell lines. So first one, let we shall discuss about one by one. So primary cell culture, after then I will discuss to them. So my dear students, we are observing to the here. So first one, this is the cell culture obtained start from the cells of host tissue. So first of all, primary cell culture में हम लोग क्या कर रहे हैं ना. सो प्राइमरी सेल कल्चर में होस्ट टिश्यू के साथ क्या करना, हम लोग को कलेक्ट कर रहा है सेल्स. एंड सेकेंड वन क्या करना, द सेल्स डिसोसिएटेड फ्रॉम द पेरेंटल टिश्यू. सो सेल्स क्या कर रहे हैं ना, हम पेरेंटल टिश्यू के साथ डिसोसिएट कर रहे हैं. एंड और द ग्रोइंग ऑन द सूटेबल कंटेनर्स. सो दैट वन क्या करना है, कहाँ पर ग्रोइंग कर सकते हैं, वी आर मेकिंग टू द मीडिया. सो पहले मैं बोल दिया थ्री टाइप्स ऑफ द मीडिया, सीरम मीडियम and BLR media. So like that those are the medias. So suitable media में क्या करना, वो सेल रखना चाहिए. So रखना के बाद क्या करना, वो सेल क्या करना, डेवलप कर रहा है. So that is the first one we are calling about this primary cell culture. So my dear students, and second one, such as a culture comprises mostly heterogeneous cells. So those are the cells. Which type of the cells? Heterogeneous cells. Why? Because we are connected to the host cell. That cell is a homozygous cell. So homozygous cells is convergent to the heterozygous by the basement of the container containing to the some of the different kinds of the minerals and different kinds of the cellular, different kinds of the nutrients. So that's why here the cell is not as similar as to the parent or host. So that's why we are understanding to the heterogeneous cells is growing on the container. So that is a culture media. So artificial culture media. The most of the cell divisions for only limited time. So here the cell क्या करना ना, limited time में cell division कर रहा है, most of the cell divisions. However, these cells are much similar to the parent. So that's why क्या करना, वो cells क्या करना ना, parent के साथ similar कर सकता है. And next one देखिए, here the second one देखिए, primary cell culture में first one adherent cells. Adherent cells में देखिए, these are the cells are anchorage development dependent and propagated as the monolayer cells. So my dear students, we are observing here the cell. Here the cell is containing only monolayer, so not a bilayer model. So only monolayer is containing to the cell wall. First of all point at this adherent cells. And second one, these are the cells is need to be attached to a solid. सो ये वो सेल्स में क्या करना ना है, सॉलिड कंटेंट अटैच करना चाहिए. सो करना नहीं तो क्या करना, वो सेल डिस्ट्रॉयड होगा. सो दैट्स वे क्या करना, सेमी सॉलिड सबस्ट्रेट फॉर दिस प्रोलिफॉर्मेशन. सो दैट्स वे क्या करना, वो सॉलिड नहीं तो क्या करना, सेमी सॉलिड हो सबस्ट्रेट यहाँ पर अटैच करेगा तो वो सेल ठीक ठाक हो गया, नहीं तो ठीक ठाक नहीं है. वो अंडरस्टैंडिंग करिए आप लोग. एंड नेक्स्ट वन देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट, दीज adheres to culture vessels with the uses of extracellular matrix, which is the generally derived from the tissue of the organs that are immobile and embedded in a network of the connective tissue.
सो आप लोगों का वो जूलॉजी में और बॉटनी में आप लोगों को पढ़ा देंगे तो यहाँ पर टिश्यूज है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द टिश्यूज आर देयर। वो टिश्यूज के साथ क्या करना, वो सेल्स हो एमडब्ड कर रहे हैं, एमडब्ड मतलब वो स्टिक करना चाहिए। सो स्टिक करेंगे तो क्या करना, वो सेल्स क्या करना डेराइव्ड फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ ऑर्गन। सो बाद में क्या करना, ऑर्गन्स के साथ क्या करना, इमोबिलाइज कर रहा है, नहीं तो क्या करना इमोबिलाइज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्या करना ना, फाइब्रोब्लास्टिस एंड एपिथेलियल सेल्स आप लोगों को पता है, इमोबिलाइज करने के लिए क्या करना, फाइब्रोब्लास्टिस। सो फाइब्रोब्लास्टिस आप लोगों को पता है, आपका एयर है, वो एयर का नीचे होता है एक, सो दट वन का क्या बोलते हैं, फाइब्रोब्लास्टिस बोलता है एयर का नीचे। सो माय डियर स्टूडेंट्स कीप इट योर माइंड, वो एयर का नीचे क्या होगा ना, फाइब्रोब्लास्टिस आर देयर, और एपिथेलियल टिश्यूज के साथ क्या करना, इमोबिलाइज करना चाहिए वो सेल्स। आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करिए विच सेल्स है, एडियरेंट सेल्स। एंड नेक्स्ट वन देखिए सस्पेंशन सेल्स। सो ये द फर्स्ट वन प्राइमरी टाइप ऑफ द सेल्स में सभी है। सो सस्पेंशन सेल्स डू नॉट अटैच टू द सरफेस ऑफ द कल्चर वेजल्स। सो पहले क्या करना, वो सेल का चाहिए, वो सेल का क्या चाहिए, सॉलिड कंटेंट और सेमी सॉलिड कंटेंट वॉल चाहिए। यहाँ पर वो नहीं चाहिए, यहाँ पर क्या करना, कोई अटैच, वो सरफेस का कोई अटैच नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते। दीज आर द सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एनक्रोजिन इंडिपेंडेंट और नॉन एडिसेंट विच कैन बी ग्रोन फ्लोटिंग इन द कल्चर मीडियम। सो दिस वन कहाँ पर है ना ग्लोइंग कर रहा है, वो कंटेनर में, वो वाला क्या कर रहा है ना, दट वन। सो फाइनल एडिसेंट सेल्स क्या करना ना, कंटेनर में थिक वाल का साथ क्या करना, अटैच कर रहे हैं। बट दिस वन क्या करना, कोई सेल्स अटैच नहीं है कंटेनर में। सो क्या कर रहा है, अटैच नहीं तो वो सेल्स, सो सभी सेल्स क्या करना, फ्लोटिंग ऑन द कल्चर मीडिया। सो कल्चर मीडिया का ऊपर क्या करना, फ्लोटिंग कर रहा है। सो फ्लोटिंग करके वो सेल्स क्या कर रहे हैं ना, फ्लोटिंग करके ग्रोइंग कर रहे हैं। कीप इट योर माइंड, सस्पेंसर सेल्स ओनली। एडिसेंट सेल्स क्या करना, कंटेनर। सो कंटेनर मतलब क्या करना, कल्चर मीडिया में कहाँ पर रख सकता है, सो थिक और सेमी सॉलिड कंटेनर ऑफ द सेल वाल में वो रख सकते हैं वो सेल्स। दट वन आप लोगों को आइडेंटिफाई करिए। एंड नेक्स्ट वन सेकंड पॉइंट देखिए, हेमाटोट्रोपिक स्टेम सेल्स। सो दट मतलब डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लड सेल्स, प्लेन सेल्स, बोन मैरो सेल्स। सो दोज आर दी सेल्स। हेमाटो मतलब आप लोगों को पता है, हेमाटोलॉजी द स्टडी ऑफ द ब्लड, यहाँ पर स्टेम सेल्स क्या करना नाम, सो ब्लड सेल्स है, प्लेन सेल्स है, बोन मैरो सेल्स है। बोन मैरो क्या करना, इट विल प्रोड्यूस टू द ब्लड सेल्स। सो दैट्स वाई आरबीसी सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए बोन मैरो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द सेल्स क्या करना, एंड ट्यूमर सेल्स कैन बी ग्रो इन सस्पेंशन। सो यहाँ पर क्या करना ना, विच सेल्स वो सस्पेंशन सेल्स में ग्रोइंग कर रहा है ना, ब्लड सेल्स ग्रोइंग कर रहा है, प्लीन सेल्स ग्रोइंग कर रहा है, बोन मैरो सेल्स ग्रोइंग कर रहा है, ट्यूमर्स। सो ट्यूमर्स आप लोगों को पता है, वो ट्यूमर सेल्स ग्रोइंग करने के लिए क्या यूज हो गया ना, सस्पेंशन सेल्स कल्चर यूज हो गया। एंड नेक्स्ट वन देखिए, थर्ड वन पॉइंट, दीज आर द सेल्स ग्रो मच फास्टर which do not require for the frequent replacement of the medium and can be easily maintained. So these are the cells is growing, so very much growing कर रहा है। which one है ना, सस्पेंसर सेल्स इज ग्रोइंग मच फास्टर, वेरी फास्ट में क्या करना, ग्रोइंग कर रहा है। सो विच डू नॉट रिक्वायर, उसका क्या रिक्वायर नहीं है, फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट ऑफ द मीडियम। सो उसका क्या करना ना, रिप्लेसमेंट मीडियम, कल्चर मीडियम हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वो मीडियम क्या करना, फ्रीक्वेंटली रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए। सो एक बार हम लोगों क्या करना है, कल्चर मीडियम रखा देंगे तो वो सेल्स क्या कर रहे हैं ना, डेवलपमेंट कर रहे हैं, ग्रोइंग कर रहे हैं यहाँ पर। सो इसलिए क्या करना है, इट इज़ ईजिली मेंटेन इन द कल्चर मीडिया। कीप इट योर माइंड, वो सेल्स क्या करना है, मेंटेन करने के, ईजिली मेंटेन करने के लिए वेरी वेरी यूजफुल है, आप लोगों को वो सोचना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट देखिए, these are of homozygous type and enzymatic treatment is not required for dissociation of the cells. So these are of homozygous type. वो सेल्स क्या करना, विच टाइप ऑफ द सेल्स है, होमोजाइगोस सेल्स, एंड एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो बिकॉज क्या करना, ऑल सेल्स आर इक्वल सेल्स है। यहाँ पर क्या करना, हेट्रोजाइगोस सेल्स है, एडियरेंट सेल्स, बट इसमें सस्पेंसर सेल्स क्या करना, होमोजाइगोस सेल्स। जस्ट कंपेयर करेंगे तो आपको ईजी अंडरस्टैंडिंग होगी, कंपेयर नहीं तो क्या करना, अंडरस्टैंडिंग लाइए। माय डियर स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करिए यहाँ पर। सो दैट मतलब क्या करना, दीज आर दी सेल्स क्या करना, एंजाइम नहीं चाहिए,
चाहिए, नॉट रिक्वायर फॉर द डिसोसिएशन ऑफ द सेल्स। यहाँ पर एसोसिएट कर रहा है, रिक्वायर के चाहिए, एसोसिएट करने के दट मतलब क्या करना है, एमडब कर रहा है। सो कहाँ पर है ना, एमडब मतलब स्टिक ही कर रहा है, बट यहाँ पर वो स्टिक नहीं है कि ओनली फ्लोट ऑन टू द मीडिया, मीडिया में क्या करना, फ्लोटिंग कर रहा है। सिमिलर टू द दिस सेल्स, दिस सेल कल्चर हैव ए शॉर्ट लार्ज पीरियड, शॉर्ट और लार्ज पीरियड ऑफ द सेल। सो आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग करिए, सस्पेंसर सेल के लिए वो लिखना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन देखिए, कॉन्फ्लिक्ट कल्चर एंड द necessity of the subculture. So conflict culture and necessity of the subculture, this one of primary cells में another one type है. So after the cells are isolated from the tissue and proliferate under the apoptotic condition. So हम लोगों क्या कर रहे हैं ना, वो सेल कलेक्ट कर रहा है, कहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, सो हम लोग हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्टेड एनिमल के साथ एक सेल सेलेक्ट कर रहा है। सेलेक्ट करने के बाद वो सेल क्या कर रहा है, आइसोलेट कर रहे हैं। आइसोलेट करने के बाद क्या करना, वो सेल क्या कर रहा है ना, सो इन दिस आइसोलेटेड ऑफ दिस सेल, आइसोलेटेड ऑफ द सेल क्या करना, प्रोलिफरम कर रहा है। प्रोलिफरम करेगा तो क्या करना ना, एप्रोप्राइटिक कंडीशन में वो सेल है। सो दीज ऑक्युपाई ऑल द अवेलेबल सबस्ट्रेट्स। सो वो सेल क्या करना, वो सबस्ट्रेट में ऑक्युपाई करने के लिए अच्छा हो गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, रिच कन्फ्लुएंस क्या करना, अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस वन, दट मतलब क्या करना, आइसोलेट करने के बाद क्या करना, वो सेल में क्या नहीं है, वो सेल में कुछ नहीं मतलब क्या करना, कोई इनऑर्गेनिक मटेरियल का कोई नहीं है, बिकॉज क्या करना, आइसोलेट कर रहे, आइसोलेट करने के बाद वो सेल क्या करना, कहाँ पर रखा दिया, कल्चर मीडियम में रखना चाहिए, दिस वन टाइप में। एंड नेक्स्ट वन देखो, फॉर ए फ्यू डेज इट कैन बिकेम टू क्राउडेड फॉर देयर कंटेनर एंड दिस कैन बी डिटरमाइंड टू देयर ग्रोथ। आप लोग अंडरस्टैंडिंग करिए। सो अंडरस्टैंडिंग क्या कर रहे हैं ना, फ्यू डेज का बाद क्या करना, वो सेल डेवलप हो गया, विच सेल है, कॉन्फ्लुएंस कल्चर और नेसेसिटी ऑफ द सब कल्चर। सो वो सेल कल्चर क्या कर रहा है ना, बहुत डेवलप कर रहा है फ्यू डेज के बाद। सो फ्यू डेज के बाद डेवलप करने के बाद आप लोग वो कल्चर मीडिया कंटेनर देखना है तो क्या करना, पूरा कंटेनर में वो सेल से आप लोग अंडरस्टैंडिंग करिए। सो उसका थोड़ा टाइम चाहिए। सो नेक्स्ट वन देखिए, जनरली लीडिंग टू सेल डेथ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो सेल्स में क्या करना है, सेल डेथ के लिए लीडिंग टू द सेल डेथ इफ द लेफ्ट फॉर द लॉन्ग टाइम। सो सेल डेथ करने के लिए क्या कर रहा है ना, थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, बट वो सेल्स ग्रोइंग ज़्यादा हो गया, डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया, कहाँ पर है ना, कल्चर मीडियम में, विच सेल्स है, कॉन्फ्लुएंट कल्चर सेल्स। सो नेक्स्ट वन देखिए, दीज सेल्स, सो दीज आर दी सेल्स, आप लोग हम अंडरस्टैंडिंग करिए, दीज आर दी सेल्स अंडरस्टैंडिंग करिए आप लोगों